कुछ दिनों पहले मैं एक लड़की से मिली और मुझे मिलके लगा यार ये तो बहुत ही क्यूट पपी सी लड़की है, इसको तैयार होने का बहुत शौक होगा। बट व्हेन आई गॉट टू नो कि एट सच यंग एज ऑफ 25 शी हैज अचीव्ड लिटरली biggest milestones in life, I was super impressed and she is very very talented and none other than Bisma Gamar. Thank you so much, Aisha. Very kind of you for such a lovely introduction. Thank you. How are you, Bisma? I'm doing well, and honestly, I'm very excited. तो मैं आप लोगों को बताती चलूं that Bisma is a representative from Pakistan, youth representative in United Nations under National Youth Council. So बिस्मा, मुझे आप ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी ये जो डेजिग्नेशन है, how did it happen? So, Aisha, honestly, I would say ke passion. When there's something that comes in your mind, I always would like to advise everyone that go for it, because you never know कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, and you start off with volunteer work, and I always love to volunteer for social development projects, and बस अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, यही करते करते I was able to contribute on different forums and then be affiliated with the United Nations, Right, right. and now representing Pakistan in USA. So I would say कि it's just something that comes out of the heart. What was your drive to work for youth here in Pakistan? ये जैसे आपने कहा पैशन था, तो ये पैशन कहाँ से आया, ड्राइव कहाँ से आई? मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, जब पाकिस्तानी टैलेंट की बात आती है ना, तो वी आर वेरी टैलेंटेड, Yes. बहुत पोटेंशियल है, एंड वी आर डूइंग वंडर्स ऑनेस्टली, बट बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है। Sitting in forums and being in places जहाँ पे seldom being the only Pakistani or being the youth representation. So I feel कि I really wanted to increase that representative, because जो हमारा काम हो रहा है, जो उसकी impact है, that needs to be portrayed and projected in a much larger way. So when you were there in USA, did you work there with the organizations? Yes, so I was part of UN's NGO sector, which is called ECOSOC, Economic and Social Forum, and they work on especially youth development and women development. So that is something that I've been affiliated till now. Exploitation एक word होता है. A lot of times, a lot of companies, a lot of places it happens. You were in USA, वहाँ पे किस तरह का क्या सिस्टम होता है? आपने जो वर्ड यूज किया है ना आयशा, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस थिंग, ये एक्सपोजर एंड एक्सप्लॉयटेशन जाए बहुत इन लाइन का फर्क। Yes. And I think this is actually something we really need to think on, because हम टैलेंट को क्या कर रहे हैं कि for the sake of giving them exposure और telling them कि हम आपको exposure दे रहे हैं, हम actually exploit कर रहे होते हैं, right? And this goes both ways. So मैं Yes. कहती हूँ कि एक ऐसा common, there's a, this is a pain point that's in USA, that's in Pakistan, and इसका country से ज़्यादा ना mindset पे impact होता है. So it really needs to change from the mindset level. एंड ये वाला एक हम कॉमन चीज सुनते हुए आए हैं ना कि वी नीड टू क्रिएट सीट्स फॉर यूथ एट द टेबल, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट इनफ क्रिएटिंग सीट्स, राइट? डू वी ऑफन गिव देम द चांस टू लिसन टू देम व्हेन दे आर ऑन द टेबल? सो बिठा देना इज नॉट इज वन थिंग, बट एक्नॉलेजिंग एंड देन एजुकेटिंग देम एंड देन एम्पावरिंग देम, दैट इज द ट्रू थिंग। अच्छा, मिस ना अपना कोई किस्सा अगर याद हो where you think that you got the exposure but you got exploited for that, like ऐसा लगता हो ना कि यार ये नहीं गलत हुआ मुझे उस चीज के any thing that you remember? रादर देन सेइंग कि मुझे रिग्रेट हुआ हो कि यार सामने वाले ने मेरे साथ ऐसे एक्सप्लॉइट किया, आई फील कि ऑफन वी एक्सप्लॉइट आवर ओन सेल्व्स, राइट? सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई हैव सैट एंड आई हैव फेल्ट बर्नआउट, एंड आई हैव फेल्ट कि एक वेल बीइंग एंड एक हसल में ना, अगेन देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, एंड उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। सो आई हैव ऑफन सैट एंड क्वेश्चन माई सेल्फ कि बिस्मा, कि ये जो तुम कर रही हो, यू आर एक्सप्लॉइटिंग योरसेल्फ, how much worth does this have for your own self and for your well-being? So बहुत ज़रूरी है, being sane and taking care of your own well-being, because that is when others will. And you have to set boundaries. अगर आपको खुद अपनी वैल्यू नहीं पता होगी ना तो सामने वाला आपको वैल्यू नहीं करेगा। आपका जो काम है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसमें हम ऑफन एक डिस्कनेक्ट ले आते हैं, राइट? पैशन को हम लोग कहते हैं कि वो एक साइड पे होना चाहिए, और वर्क इज समथिंग सेपरेट, बिकॉज आपकी पैशन से तो करियर नहीं बनेगा। दिस इज समथिंग वी हैव ग्रोन अप हियरिंग, बट आई थिंक कि द मोमेंट दैट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि you want to be your authentic self, right? And you will bring your authentic and genuine self to the table. अब उसमें आपका passion, work, anything,
it's all going to be integrated, and I think कि value वहीं से create होगी, because you are valuing कि आप अपना time किस पे लगा रहे हो. सही बात है। That's just how the tag is basically. या यहाँ पे काम करना शुरू किया, ठीक है। गैप भी देखे होंगे, चैलेंजेस भी देखे होंगे, क्योंकि जब आप कोई इनिशिएटिव या पर्पस लेके आते हो ना, इट्स नॉट एन ईज़ी ग्राउंड टू प्ले। आई थिंक कि सबसे बड़ा एक जो चैलेंज आई फील कि विच इज़ इवन इन वर्क प्लेसेस एंड एज इंडिविजुअल्स के जो जनरेशनल गैप्स हैं ना हमारे, फ्रॉम जेन ज़ी टू मिलेनियल्स टू बेबी बूमर्स नाउ अल्फान्स, हम उनको ना सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे। बीइंग अ जेन ज़ी माई सेल्फ, आई फील एंड आई थिंक दिस इज़ अ वॉइस फॉर मेनी जेन ज़ी आयशा कि बोला ये जाता है कि यू आर टू यंग टू डू दिस या और यू आर आइदर टू ओल्ड टू डू दिस, राइट? सो हमने बहुत ज़्यादा आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो पोटेंशियल है, उसको हमने टाई किया हुआ है विद व्हाट एज यू आर, राइट? या एंड द मोमेंट दैट यू ब्रिंग एन आइडिया और यू एंटर अ रूम, सो आपका आइडिया, आपका जो एक पर्सोना है वो सेकंड परसीव होता है। द फर्स्ट थिंग कम्स इन कि अच्छा दिस पर्सन हैज़ ओनली ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, रिजेक्टेड। ये तो क्रिएटिव हो ही नहीं सकता। अगर मुझे कुछ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह लोग नहीं मिलते जो सुनते नहीं, so maybe I wouldn't be been able to be Bisma and be myself. ये इतनी अच्छी बात है बिस्मा, ज़िंदगी में वाक़ई कभी आपको ना एक किक स्टार्ट ही चाहिए होता है, और कोई आपका पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर ले। बिकॉज़ देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हू विल टेल यू यू हैव द स्पार्क, पर उस स्पार्क को सही जगह इग्नाइट होना ज़रूरी है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जेनज़ीज़ में, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे नो देयर वर्थ, द वैल्यू ऑफ देयर टाइम एज़ वेल। Yes. तो मिलेनियल्स का क्या होता था कि यार वो बोल नहीं पाते थे, बिकॉज़ हमें हमारे हाउसहोल्ड्स में भी ऐसा हमारी कंडीशनिंग हुई है ना कि बेटा नहीं, बड़े हैं तो मत बोलो, बस खामोश रहना है, बर्दाश्त कर लो, टॉलरेट कर लो। तो ऐसा होता है कि अगर आप बर्दाश्त ही करते रहेंगे, रिसीवर एंड पर ही हमेशा रहेंगे ना, तो वो फिर वहीं से एक्सप्लॉइटेशन भी शुरू होती है, वहीं से बर्निंग आउट शुरू होता है, क्योंकि आप सिर्फ ले ही रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इट। Very true, Aisha. I think beautifully put. इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से you couldn't have put it out there. थैंक यू। सो दिस इज़ लाइक दैट। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि आई रेड इन योर प्रोफाइल कि आप लोगों ने, आपने और आपकी सिस्टर ने एक वेंचर शुरू किया, आवाज़े बेज़ुबान Yes. वेलफेयर फॉर द एनिमल्स। Yes. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये। आई वांट टू नो ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई, इसमें क्या किया आप लोगों ने? So this was a venture that was initiated and ideated by my sister, and then I joined hands with her. And one thing that often जो ignore हो जाता है कि यार one part of our society are animals, and they're not a part of it. They're living examples of it, right? We coexist. तो हम उनकी एग्जिस्टेंस को ही इतना ज़्यादा अंडरमाइन कर देते हैं, तो कोएक्सिस्टेंस की तो बात अलग ही आ रही है। So the inception was as simple as that कि यार there should be a change in the mindset, because Aisha, if you look at it, हम लोग बहुत ज़्यादा सीरीज देखते हैं, we see a lot of stories के adults हैं and then they have a lot of violent things in themselves, right? And I think I don't even want to name the cases, but so many cases have arisen just because they may seem very normal and they're doing normal in their life, बहुत बड़े-बड़े लोग भी, but they do things which are out of the world, and we're like, Yeah. how could someone be so violent and so cruel? Are they even humans? So that is exactly where this idea came from, because we thought कि that trickles down कि when you're a child and आप अपना aggression, आप अपनी violence ना वो animals पे निकाल रहे होते हो. How often it is कि हंसी मजाक में you're throwing stones at dogs, you're just teasing cats and so on. Being so insensitive. Being so insensitive, that's the word. So that is what it was कि shelters भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग rescue भी कर लेते हैं, and हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह we're getting there. We have vets and a lot of people are doing amazing things. लेकिन जो एक चीज़ की कमी थी ना, जहाँ पे आवाज़ बेज़ुबान, the voice for voiceless, ये कहाँ से वर्ड, कहाँ से? ये बस इसलिए आया क्योंकि जब ये आइडिया, आई रिमेम्बर कि व्हेन माय सिस्टर एंड माय ब्रदर दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इट एंड ऑल, सो एवरीवन यूज्ड टू कमेंट वन थिंग, दे यूज्ड टू बी लाइक यार यहाँ पे इंसानों का कोई ख्याल नहीं रखता, इंसानों के कुछ नहीं हो रहा, सो जानवरों के लिए क्यों? सो वी वर लाइक यार वो बेजुबान है, सही है, तो उनकी आवाज इतना खूबसूरत नाम है, आवाज़े बेज़ुबान की आवाज़। एंड यही उसका कॉन्सेप्ट है आयशा, बस के चेंजिंग द माइंडसेट of at least the children, because they will be the leaders, they will be growing up
एंड अगर उनको वहीं पे कंडीशन किया जाए ना कि यार व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग एंड दैट इनसेंसिटिव वाला जो एलिमेंट है वो हटाए, तो दे वुड ग्रो अप नॉट जस्ट एज गुड ह्यूमंस but safe humans for the society. सेफ, वेरी राइट वर्ड, राइटली सेड बिस्मा। हमें ना सेफ एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने आने चाहिए। मैंने देखा जैसे कि आपने कहा इंजीनियर सन में तो वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं ना, बहुत लिटरली ब्रूटली जुल्म किया जाता है एनिमल्स पे, just because they can't say doesn't mean that you will harm them for the fun, literally for the sake of fun। एंड आपको पता है कि वो बोल नहीं सकते बट वो कितना एहसास करते हैं, इंसानों से ज्यादा जानवर एहसास करता है यार। बिल्कुल, मुझे लगता है आज का इंसान ज्यादा जानवर बना फिर रहा है। so true and ठीक है, हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हो। और जानवर में इंसान से ज्यादा एहसास है। एग्जैक्टली, तभी तो कहते हैं कि डॉग्स और मोर लॉयर देन ह्यूमन। अच्छा बिस्मा, मुझे ये बताओ, इतनी यंग एज में जहाँ पे लड़कियां बस सेफोरा से शॉपिंग कर ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम ये कपड़े बना ले, मतलब गर्ल्स माइंड इज ऑलवेज अबाउट शॉपिंग एंड यू नो स्टफ लाइक दैट, मेकअप एंड दैट। सो यू उस एज में आप जो है ना रिप्रेजेंट कर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ये बहुत बड़ी बात है। कभी फील होता है कि यार मैं वाकई कुछ बहुत बड़ी चीज कर रही हूँ? आई थिंक कि विद ऑल द शॉपिंग एंड एवरीथिंग और शौक को साथ-साथ लेके मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आयशा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सो आई थिंक एक नेचुरल एलिमेंट होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ आती है सो देन यू फील कि यू शुड वर्क टुवर्ड्स इट बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट इन्वॉल्विंग यू, इट्स इन्वॉल्विंग अ लॉट मोर पीपल। यस। सो यू नो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट लाइक यार सिर्फ दिस्मा है। इट्स लाइक दिस्मा अलोंग विद द पाकिस्तानी यूथ। सो यू नो वो चीज़ रखनी पड़ती है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू। So, as my industry and my field, so my forte is learning and development. Okay. And अगर मैं इसको sum up करूँ, it's all about capacity building. ठीक है, from corporate level to youth level, तो kind of bridging the gap. And मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, which I stand for, bridging the gap between dreams and opportunities. तो मैं एक ही लाइन में इस चीज़ को sum up कर देती हूँ कि लोगों के पास इतनी potential है, they have a lot of aspirations, तो उनको अपॉर्च्युनिटीज तक पहुंचाना जो एक थिन लाइन है ना, तो दैट इज व्हाट आई डू। आई लाइक टू, आई वुड से इट्स अ स्मॉल एफर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम देयर, बट आई वुड से कि उस गैप को थोड़ा कम करना हाँ। बाय गिविंग देम दैट प्लेटफॉर्म, दैट रिप्रेजेंटेशन यस। एंड ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज टू अपस्किल योरसेल्फ, दैट्स इट। तो आसान भाषा में कहें तो बिस्मा जो है वो पाकिस्तान के यूथ की जो बातें हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंचाती है। ऐसा ही है कि क्या है क्या नहीं, क्या करना, क्या वैसे मसाइल हैं और आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है, ब्रिजिंग ब्रिजिंग गैप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस, राइट। एंड आयशा इसमें पता है व्हाट आई रियली फील इज कि इफ आई हैव अ माइक, हाँ। सही है, तो इट्स नॉट इनफ। देयर शुड बी 10 more people that could have the mic and if I could create that, यस। तो बस यही मैं करना चाहती हूँ। बिकॉज़ अगर मैं ही बोलती रहूँ या मैं ही वो चीज़ करती रहूँ, सो दैट इज़ जस्ट मी बीइंग माई सेल्फ ना। बट यू नीड टू बी सेल्फलेसली वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, तो और लोग आएँगे, वो मुझे खुशी होगी एंड यही एफर्ट है, दैट्स इट। अच्छा बिस्मा, इतनी यंग एज में आप डेफिनेटली आप जब ऑर्गेनाइज करवाते हो इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस, यू गेट टू मीट सी सूट पीपल, एग्जीक्यूटिव लेवल पीपल। एक्सेप्टेबिलिटी जब आपने स्टार्ट किया ना ये काम, तो आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिली या आपने वहाँ पे कुछ चैलेंजेस फेस किए? आई थिंक कि जब आप जब आप इस टाइप के इनिशिएटिव्स लेते हो एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, राइट। तो कभी कभी होता है कि यू आर प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, राइट, एंड ये हर जगह होता है। जनरेशनल गैप वाली बात मैं इस पे फिर से एम्फसाइज करूंगी कि कभी कभी हाँ ये चीज़ हुई कि मे बी माई मैसेज या माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बीइंग परसीव्ड इन अ डिफरेंट वे, या बिकॉज़ इसमें किसी की गलती नहीं है, बट एक जनरेशनल गैप ऐसा आता ही है है। क्योंकि लेट्स सपोज यू आर अ जेन ज़ी और आप बात कर रहे हो किसी वेरी एग्जीक्यूटिव, हाँ, और या फिर किसी बिल्कुल एग्जीक्यूटिव लेवल पर्सन से, तो उनके सोचने का तरीका बहुत अलग होगा आपके सोचने के तरीके से। आपके आइडियाज़ अलग होंगे, उनके आइडियाज़ अलग होंगे, तो वो क्लैश होता है या फिर वहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है? मैं कहती हूँ कि अब के जो आई वुड से कि लीडरशिप की भी मैं बात करूँ,
So it's so good to see Aisha के leadership has also evolved. हाँ, जो probably हमारे 5 साल पहले जो leadership का concept था executive C-suite leadership, that has evolved because all these people माशाल्लाह से they have evolved with themselves, right? And the concept of reskilling, relearning and unlearning वाली जो चीज़ है, तो वो two way जब implement होती हैं from our side as well and from leadership. So I think that is what kind of builds a very, very productive and a very, very enriching environment. अच्छा बिस्मा ये बताओ कि आप ऑब्वियसली आपकी जो जनरेशन है जेन ज़ी वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। हुँ। सोशल मीडिया इज़ टू क्लटर्ड, ठीक है? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हो या फिर आई आई नो यू हैव टेकन अ पॉज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम सोशल मीडिया, व्हाट वाज़ द रीज़न? Yes, very well on point. So मैंने it started off कि थोड़ा सा बर्नआउट हुआ था, थोड़ा सा अपनी मेंटल वेलबींग की मैं इस पे बात करूँगी कि वी ऑफन अननोटिस दैट थिंग, राइट? एंड वी आर ऑलवेज लाइक यार अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी करियर में या फिर पर्सनल उसमें भी गैप ले लिया, सो परसेप्शन अपने से ज़्यादा सोसाइटी का ये होता है कि यार करियर ब्रेक्स तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्नशिप हुँ, not just in forms of coming back from maternity leaves, but even if you're taking a career break due to XYZ reason, तो normalize नहीं है। या हम कितना देखते हैं कि हम सुनते हैं कि बीइंग अ मेल हम उनको तो डिसरिगार्ड ही करते हैं, व्हिच इज सो रॉन्ग। इफ समवन इज नॉट वेल, सो ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी हुँ, हैम्पर्स, राइट? So returnships really need to be, given emphasis and welcome. So coming back on that, there was a point, when my brother-in-law passed away back in 2022. And as I said, my mentor, my inspiration, all came from Hunaid Bhai. हुँ, So वहाँ पे I kind of realized कि यार I need to find my purpose. It's not about anything else. It's just about finding कि यार अच्छा what does BISMA stand for? BISMA Commerce stands for what? And then फिर aligning it with what I ये नहीं कि job ले ली and then फिर उसको align करने में लग जाऊँ. Time to focus on myself, राइट, mentally, be more spiritually connected, be more, fill myself with gratitude. I traveled a lot. वाओ! सोलो ट्रैवलिंग सोलो ट्रैवलिंग उसी में फिर नए लोग से आप मिलते हो। अब बताए नए लोग से मिलने की आयशा जो आपने भी इस बात कही थी व्हेन यू वेंट टू यूएई एंड वेरी स्पॉट ऑन के पर्सपेक्टिव्स बस। यस, तो वो जो ब्रेक थी ना वो 15 दिन से वो 1 साल की कैसे हुई मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छा साल था। एंड देन आई केम बैक, ऑफ कोर्स आना था, आई केम बैक बट आई केम बैक एज़ बिस्मा। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा भी मौका मिले तो एक्सपोज़र ज़रूर लो, ट्रैवल ज़रूर करो क्योंकि सोलो ट्रैवल में जितना आप लर्न करते हैं और जितना आप खुद को जानते हैं, हम बहुत पूरी लाइफ में खुद को नहीं जानते। सो ट्रू है। अभी भी मुझे लगता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ मी दैट आई नीड टू अनवाइंड, आई नीड टू एक्सप्लोर क्या पता कि मेरे अंदर और क्या-क्या टैलेंट हो सकता है एंड जस्ट इट गोज़ फॉर यू एंड एवरी अदर पर्सन। बिल्कुल सही बात इट्स है। अ लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप सीखते हो, अपने आप को सीखते हो, जानते हो, पहचानते हो, अच्छा मेरे अंदर ये भी स्किल है, मैं ये भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, सो एक्सपोज़र इज़ वेरी एंड आयशा ये आपने इसकी बात की ना, दैट डजंट गो मच आउट के आपको अपने बारे में ही नहीं पता होता। सो हमारी जैसे जो मैं कॉन्फ्रेंसेस हम लोग कर रहे होते हैं, सो विपकॉन द वन दैट्स एक्चुअली ऑन गोइंग राइट नाउ, तो इस साल का थीम ही ना आपने जो बात बोली है ना वही है। वाओ! इट्स कॉल्ड वंडरिंग। एंड वंडरिंग में 3 चीज़ें, हाँ, कि टैपिंग ऑन टू योर अनरियलाइज्ड पोटेंशियल। राइट, क्या आपके अंदर ही बहुत पोटेंशियल है लेकिन आप खुद ही टैप नहीं करते तो सामने वाला क्या करे? एब्सोल्यूट एंड बीइंग अ क्यूरियस ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन सेल्फ, हुँ, कि हम ये बात कहते हैं ना आयशा के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हुँ, टैलेंट नहीं है, दोनों का एक वो ट्रेड ऑफ वही है, चलता है। बट कितना हम क्यूरियसली ऑब्जर्व करते हैं, डू वी हैव दैट आईज़? वी डोंट। यस, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। एब्सोल्यूटली अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हाँ, करनी पड़ती हैं, खुद भी करनी पड़ती हैं बट वही बात है जिसमें कि थोड़ा-सा चैलेंजेस ये भी आते हैं कि आपके सराउंडिंग्स बहुत मैटर करते हैं। अगर एक इंसान मेंटली पीस में है ना, हुँ। तो उसको खुद ब खुद पॉजिटिविटी दिखेगी है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप बर्नआउट हो रहे हो, डिप्रेशन आपको हो रहा है और आपका बहुत मेंटल प्रेशर है, यस। वहाँ आपको सबसे पहले तो उससे फाइट करना है। सो वंस यू गेट आउट ऑफ दैट ज़ोन हुँ। देन यू कैन थिंक अबाउट एंड यू नो व्हाट मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि अल्लाह ताला इतने रास्ते बना देते हैं। आपको एक रास्ता पकड़ो, दूसरा, तीसरा, चौथा खुद से आना शुरू होता है। आपने आयशा मुझे एक बात बोली थी दैट होता है कभी-कभी सम पीपल से सम थिंग्स टू यू एंड इट स्टिक्स इन योर माइंड। आयशा टोल्ड मी कि हम
बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करने में लगे हुए होते हैं, जो आजकल का बज़वर्ड है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, एंड इट्स अ नाइस थिंग। मीनिंगफुल कनेक्शंस होना चाहिए, बट देन यू वर सेइंग कि कभी-कभी हम उसके इतने ज़्यादा चल जाते हैं कि यार पीपल विल ओपन डोर्स फॉर अस, कि वी ऑफन फॉरगेट टू बिल्ड दैट कनेक्शन दैट्स अप देयर। Yeah. एंड व्हेन यू सेड दैट थिंग ना कि वो वाला कनेक्शन बनाना इतना ज़रूरी है, बाकी कनेक्शंस बनेंगे लेकिन द राइट कनेक्शंस विल कम टू योर प्लेस। You know, when you're authentically yourself, Yeah. so your work reflects on that. People see you for who you are, and that is how it works. This is as simple as that. अच्छा, अब इसमें इसको कंक्लूड करते हुए मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछना है कि अब आप जब यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? यूथ में मुझे आप हमने जैसे बात की बहुत पोटेंशियल है, बट व्हेन दे लैंड इनटू देयर करियर पाथ, नेविगेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है? और आप तो काम ही इसी चीज़ के लिए कर रहे हो कि यूथ की डेवलपमेंट करें, उनकी स्किल्स, प्रोफेशनल जर्नी। So what gaps do you see there and how do you think that that can be managed? I think, Aisha, one thing that I really would like to conclude this on is they, when they enter the workforce, so they go after the societal labels. So yeah, हाँ, what I mean by the societal labels is कि यार ये कंपनी है, ठीक है, कुछ कंपनीज हैं उस पे everyone would be trying, ठीक है, that's fine, everyone has their aspiration, but don't make it like you know the do and die वाली चीज, ठीक है? आई फील कि वो जो माइंडसेट बन गया है ना कि यार हमें यही करना है और इस वे में ही करना है, एंड अगर ये नहीं हुआ थोड़ा सा लेफ्ट राइट हमें चले गए, सो पीपल डोंट पैट देमसेल्फ ऑन द बैक। बहुत बहुत लोग मैंने देखे हैं जो कि इसी हसल में दे फॉर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, एंड आई नो दे आर in their startups and their own ventures like Catch Up with Aisha na mashallah se. thank Your journey is very commendable, Aisha, कि how you just started. You were like बस करना है तो करना है। thank you So so this is what I would say कि जो गैप है जो कि फुलफिल नहीं होता। So picking up on your thing, आयशा, कि लोग बहुत ज़्यादा ना टाइम और टैलेंट को एग्ज़ॉस्ट करते हैं, थिंकिंग कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे तभी हम वर्थ होंगे या तभी हम अपनी करियर को स्टार्ट करेंगे। डोंट डू दैट। ऑलवेज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार व्हाट इज़ योर कॉलिंग, ठीक है? कॉलिंग में सिंपल चीज़ ये होगी कि यार द नेक्स्ट टाइम यू विल सिट एट नाइट, take a pen and paper, write 4 columns. One column would be कि यार what is something that you like to do, सही है? One thing would be what is something that you would want to do, ठीक है? One thing is कि what is your aspiration, कि यार it could be as desire as anything, ठीक है? उसमें लाइक टैलेंट किसी का कुछ नहीं है, it could be यार मुझे ये करना है तो अच्छा हो जाएगा। And then the last part comes in here, the practical part, सही है? हाँ, कि यार all these things को लेके आपके पास कौन-कौन से ऑप्शंस है? So probably as an example, if someone likes to write, so they would be like, यार we love writing, सही है? तो वो राइटिंग वाली जो चीज़ है उसकी एस्पिरेशन होगी कि यार we want to be a award winning novelist, सही है? Very nice. But what is your current thing? Maybe you can start off with content marketing, you know, at an organization, and you can probably start building your portfolio with it. तो इस तरीके की जो connections है ना, sit, make it, and that is what would align your calling with your career. So Right. don't jump into jobs, काइंड एक जॉब, डोंट जंप इनटू एक जॉब्स के जो, क्योंकि लेकिन ये बस ना होता है जब आप ग्रेजुएट होता हो ना, तो आप ये नहीं देखते कि मुझे करना क्या है, यू आर लाइक कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है मैं वो उसको या ग्रैब कर लूँ। और एक तरह से क्योंकि आई थिंक मेल्स पे तो प्रेशर भी होता है, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे, सो दे टेक द अपॉर्चुनिटीज कि यार अभी जो काम मिल रहा है कितने ऐसे लोग हैं जो वो काम ही नहीं कर रहे जिन्होंने पढ़ाई की है। ऐसे ही है बिल्कुल। ये आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मेरी भी पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है और मैं काम कुछ और कर रही हूँ बिकॉज़ ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ना टाइमली डायरेक्शनल हो जाएँ। आप अपने पैशन को अपने करियर के साथ अलाइन करने की कोशिश करें और उन अपॉर्च्युनिटीज़ को गॉच करने की कोशिश करें, जिनसे कि आप यू नो योर पैशन एंड योर वर्क कैन बी अलाइन्ड। Very true, and never hesitate in reaching out for help. या And honestly, Aisha, ये भी होता है कि अच्छे mentors मिलना भी बहुत important होता है, ज़रूरी है। because people could be your mentor, but then they could not be positive for you, right? Yes. Choosing the right mentor, and you know, A reaching blessing, out for help, honestly. admitting and knowing कि अच्छा we do not know everything at the same time, and we are not the master of all, and it's okay, because literally it is okay to not know everything. लेकिन the small portion that you know, just stick on to that and keep learning. आप learn करते रहो, वो exploration का जो एक thirst है वो रखते रह जाओ।
and that is where true growth starts. Lastly, मैं एक बात पूछूंगी माशाल्लाह at such young age you have a lot of wisdoms. And I'm talking to you, I don't feel like I'm talking to a 25-year-old. I feel like I'm talking to some maybe 35-year-old or 40-year-old lady who has a lot of exposure and experience in her life. Where does this wisdom comes from? I आयु फैमिली से आता है या ये कहाँ से माशाल्लाह इतनी वाइज़ बातें करती हो? I think I am again humbled to be surrounded by the people. And I would say कि इस चीज़ पे आयशा कि if and every person that crosses path with you ना, चाहे किसी काम की वजह से, चाहे even in a very small meetup, take something from them, ठीक है? And when you start taking something from people, right? So then you have like, you know, a Pandora box of positive things. Take the positive things, please. वही वाली. But फिर वो वाली चीज़ आप pick and choose करते रहते हो. My manager once told me, they're Khadija and Savina, and they told me that, you know, choose your battles wisely. ठीक है? And that was the most beautiful advice to be surrounded by the people. And I would say कि इस चीज़ पे आयशा कि if and every person that crosses path with you ना, चाहे किसी काम की वजह से, चाहे even in a very small meetup, take something from them, ठीक है? And when you start taking something from people, right? So then you have like, you know, a Pandora box of positive things. Take the positive things, please. वही वाली. But फिर वो वाली चीज़ आप pick and choose करते रहते हो. My manager once told me, they're Khadija and Savina, and they told me that, you know, choose your battles wisely, ठीक है? And that was the most beautiful advice that I got when I entered workplace, because not every battle is yours, right? And what I say is, Aisha, every day may not be good, but there's something good in every day. Oh, that's when Just look for that. तो वो जो है ना, बस वो उसको लेते जाएं and बस चलते जाएं, बस. That's how it should be. ज़बरदस्त इतना प्यारा मैसेज दे दिया है बिस्मा ने हम सबको कि देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। अगर आप देखें तो कुछ मसले भी हो रहे हैं उसको ज़रा साइड पे कर दें, जो अच्छा हो रहा है उस पे आप फोकस करें। सो बिस्मा, इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू और मुझे बहुत अच्छा लगा। योर जर्नी इज सो इंस्पिरेशनल, यू आर माशाल्लाह सो टैलेंटेड, सो इंस्पिरेशनल। और जो काम आप कर रहे हो यूथ के लिए ये बहुत रेयर है आपकी एज में देखना, जहाँ पे बच्चे बड़े अपने करियर को लेकर ही परेशान हैं, वहाँ पे आप उनके लिए काम कर रहे हो। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। लास्टली, इफ एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू जेन ज़ी अपनी एज के, या फिर आपके एज, हम मेरे एज के, वो भी नहीं है हमारे साथ ही, वही है बस. तो जी, तो कुछ कहना चाहती हो तो प्लीज़ आई वुड वांट यू टू से। I would say do it anyway, because not everyone will be happy. Not everyone will appreciate you. Not everyone will see that value, but there would be people that would appreciate you, see the value, and you know that could be the road to creating an impact. So दिमाग में अगर कोई चीज आ रही है, if your mind and heart is saying it, so do that. What if you fail, but what if you fly? What if you fly? Beautiful. So with this thought and one thing that मुझे इस पूरे कॉन्वर्सेशन सबसे प्यारी बात ये लगी कि ना ज़िंदगी में वाक़ई अच्छे लोगों का मिलना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ऐसे लोग मिल जाए ना जो आपको अपलिफ्ट करें, या आप बहुत आपके अंदर वो चीज़ इवॉल्व होती है और वो रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल. तो जिस तक इसीलिए कहते हैं कि अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखो। आपके दोस्त बताते हैं कि आप क्या हो, बिल्कुल. because you vibe when you match with people who like who you are. So it's a reflection. माशाल्लाह. So you know it's very important to be surrounded. Choose your friends wisely. I would say to friend wisely to make हम खुद अपनी सराउंडिंग बनाते हैं, तो अपनी सराउंडिंग इतनी वाइज बनाएं, इतनी अच्छी बनाएं कि वो आपको फिर हेल्प करती है टू बिकम अ बेटर पर्सन। Right. So you can't do everything alone. You always need people to keep good people, you know, Yes. around you. And with this thought, with this mass thought, I will take your leave and it was such a lovely conversation. I will be back again. अब आप सब लोग अपना प्लीज बहुत ख्याल रखें, बहुत गर्मी है, हाइड्रेटेड रहें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज.